کہاں تھی اتنی دیر لگا دی؟ عارف جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی دیدار شاہ نے کہا، سوری لالا، دراصل دریت لالا کے کمرے میں گئی تھی تو وہاں دیر ہو گئی۔ عارف معذرت خواہ لہجے میں بولی، اچھا ویسے تمہیں شہر جانے کی ضد نہیں کرنی چاہیے تھی، تم نے کون سا پڑھ کر ڈاکٹر، انجینئر یا وکیل بننا ہے؟ دیدار شاہ نے کہا، کیوں نہیں بن سکتی لالا، اور شہر جا کر پڑھنا میری ضد نہیں بلکہ میرا شوق ہے، میری خواہش ہے۔ اگر پڑھ لکھ کر میں کچھ بن نہ بھی پاؤں تو کیا ہوا، شعور تو حاصل ہوگا نا۔ عارف مسکرا کر نرم لہجے میں بولی تو دیدار نے اپنا سر جھٹکا، کالج میں لڑکے بھی ہوں گے تو ذرا احتیاط کرنا، کسی سے بھی بلا وجہ بات مت کرنا، لڑکوں کی طرف دیکھنا بھی مت، صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دینا، اور آخری بات، پردے کا خاص خیال کرنا، کسی لڑکی کو بھی اپنا چہرہ مت دکھانا، تمہیں نہیں پتہ یہ شہر کی لڑکیاں پھر ہر ایک کو تمہاری نئے نقش بتاتی پھریں گی۔ دیدار شاہ گاڑی ڈرائیو کرتا سنجیدگی سے بولا، لالا آپ مجھ سے نہ بھی بھولے تو میں اپنی حدود جانتی ہوں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے وہاں میری ہر ایکٹیویٹی پہ نظر ہوگی۔ عارف دو ٹوک لہجے میں بولی تو دیدار خاموش ہو گیا۔ حال ماہی اب قدرے بہتر تھی، اس لیے آج اس نے اپنے کمرے میں غور کرنے کا سوچا۔ پورے کمرے کا جائزہ لینے کے بعد وہ بیڈ پر جیسی ہی بیٹھی تو ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا شاذل کا فون بج اٹھا۔ ماہی اٹھ کر فون کی طرف دیکھا تو دیکھا کسی عائشہ نامی لڑکی کی کال تھی۔ لڑکی کا نام دے کر وہ جو شاذل کی طرف سے کچھ پرسکون تھی، اچانک سے بدل ہو گئی۔ میرا فون ہے۔ شاذل کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ سے سیل فون لے کر بولا، کسی عائشہ کی کال آ رہی تھی۔ ماہی نے جلے کوٹے لہجے میں بتایا تو اس کا انداز دیکھا شاذل آنکھیں سکڑ کر اس کو دیکھنے لگا۔ اچھا عائشہ میری گرل فرینڈ کا نام ہے۔ شاذل موبائل کی اسکرین پہ نظر جمائے بتانے لگا تو ماہی بے یقین نظروں سے شاذل کا منہ تکنے لگی۔ اس کو یقین نہیں آیا، اس کا شوہر خود اپنے منہ سے ہی اپنی گرل فرینڈ کا بتا رہا تھا۔ ان شاہ خاندان کے فرد کے بھی کیا کہنے ہیں، ہر بات منہ پہ مار دیتے ہیں۔ شاذل کی جانب دیکھ کر ماہی بس سوچ سکی۔ اس کو اس وقت آمنہ کی ساری باتیں یاد آنے لگی جو ہمیشہ سے اس کو بتاتی آ رہی تھی۔ اور کتنی گرل فرینڈز ہیں آپ کی؟ ماہی اپنا لہجہ نارمل کیے پوچھنے لگی۔ شاذل جو عائشہ کو کال ملانے والا تھا، ماہی کے سوال پر رک کر ہاتھوں کی مدد سے گنتی کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر ماہی کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب تھی۔ ثانیہ، تانیہ، ستارہ، تارا، یاسمین، عنبر، فرح، سارہ، رباب، دلنشی اور کچھ کا نام یاد نہیں آ رہا اس وقت۔ شاذل پرجوش لہجے میں بولا، اور بھی ہیں؟ ماہی غشت کھانے کے در پر تھی۔ ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں، شاذل مسکرا کر بولا تو ماہی کو لگا جیسے اس کو کسی نے آسمان پہ پہنچا کر بے دردی سے زمین پہ پٹک دیا ہو۔ میں کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، تم کسی سے ڈرنا مت، اگر کہیں جانا ہو تو عارف کے ساتھ چلنے کا کہنا۔ شاذل اس کا گال تھپتھپا کر کہتے کمرے سے باہر چلا گیا۔ کمینہ! شاذل کے جانے کے بعد بے اختیار اس کے منہ سے گالی نکلی جس پر اس نے جلدی سے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ میری بلا سے جتنی چاہے گرل فرینڈز بنائے، میرا کیا، ویسے بھی میں نے کون سے ساری زندگی اس کی قید میں رہنا ہے، بابا ضرور مجھے لینے آئیں گے۔ ماہی خود سے باتیں کرتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ حریم نظر نہیں آ رہی؟ حویلی میں آج کلثوم بیگم کی بہن سدرا آئی تھی، تبھی باتوں باتوں میں انہوں نے حریم کا پوچھا۔ ایک ہفتہ پہلے دریت اس کو ہاسٹل چھوڑنے گیا تھا، وہیں ہے اب، کلثوم بیگم نے بتایا۔ ٹھیک ٹھیک، مجھے دراصل ایک بات کرنی ہے تم سے، سدرا بیگم نے کہا۔ کرو، کلثوم بیگم نے اجازت دی۔ ویسے تو یہ ٹھیک وقت نہیں، پر میں نے سوچا ابھی تمہارے کان میں یہ بات ڈال دوں۔ صدف بیگم کچھ ہچکچاہٹ سے بولی، جو بات ہے بے جھجک ہو۔ کلثوم بیگم نے مسکرا کر کہا، تاپش کے لیے میں حریم کا رشتہ مانگنا چاہتی ہوں، شروع سے مجھے وہ بہت پسند ہے۔ صدف بیگم کی بات پر کلثوم بیگم کے چہرے کے تاثرات یکدم سنجیدہ ہوئے۔ ابھی ایک مہینہ پہلے حویلی سے ایک میت اٹھی تھی، خاندان کا بیٹا قتل ہو گیا، اور تم اس وقت ایسی باتیں کر رہی ہو؟ شبانہ کی عدت کے دن تو پورے ہونے دو۔ کلثوم بیگم سخت لہجے میں بولی، آپا میں کون سے جھٹ پٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات کر رہی ہوں، جب عدت پوری ہو جائے اس کے بعد کرنے کا بول رہی ہوں۔ اس وقت بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کہیں اور اس کی بات نہ طے کر دیں۔ صدف بیگم نے جلدی سے کہا، عارف کی پہلے کہیں شادی ہو جائے، اس کے بعد ویسے بھی حریم کا نمبر بعد میں ہے، نور اور نازنین اس سے بڑی ہیں۔ کلثوم بیگم نے دوسرا نکتہ نکالا، عارف کو تو تم تو رہنے دو، رہی بات نور اور نازنین کی تو نازنین کا نکاح ہو گیا ہے، بس رخصتی ہی رہتی ہے، اللہ کے حکم سے وہ بھی ہو جائے گی۔ نور کا بھی تو رشتہ طے ہے نا، تو پریشانی کس بات کی ہے؟ صدف بیگم کی بات پر کلثوم بیگم کو پسند نہیں آئی۔ عارف کے بارے میں ایسا کیوں کہا؟ اس کو رہنے دو، کلثوم بیگم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ 3 بار اس کی شادی ہوتے ہوتے نہیں ہوئی، پورے گاؤں میں اب یہ بات پھیل گئی ہے کہ شاہ خاندان کی لاڈلی بیٹی عارف شاہ کے قدم سبز ہیں۔
उसकी कभी शादी नहीं होगी। सदर बेगम बिना सोचे वो बात किसकी और किसके सामने कर रही थी, बस बोलती चली गई। ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है बातें बनाना, वो तो बहुत कुछ कह जाते हैं। पर खैर कोई मुनासिब रिश्ता देकर उसकी शादी करवा देंगे। कुलसुम बेगम बोली। खानदान में कोई देगा नहीं, खानदान से बाहर रिश्तेदारी करना मयूब समझा जाता है। तो आपा बस आप अपने अरमानों पे फातिहा पढ़ लें, क्या होता अगर आप दीदार शाह को उसका दूध शरीक भाई न बनाती, हवेली की बात हवेली में ही रह जाती। सदर बेगम तासुब से उनको देखकर बोली, अब तुम बहुत बोल रही हो, ये बात शायद भूल रही हो, जिसके बारे में बात कर रही हो वो तुम्हारी भांजी है। कुलसुम बेगम नागवारी से बोली, मेरा कोई गलत मतलब नहीं था आपा, मैं माजरत चाहती हूँ। आज तो मैं बस आपसे हरीम की बात करने आई थी, आप भाई साहब से बात कीजिएगा। सदर बेगम कुछ शर्मिंदा हुई। हरीम की शादी का फैसला दुरेद करेगा, क्योंकि मरियम ने हरीम की जिम्मेदारी दुरेद को दी थी। कुलसुम बेगम ने बताया, वो तो सबको पता है, पर बड़े तो भाई साहब हैं ना। सद्दा बेगम उनकी बात पर मुस्कुराई। बेशक वो बड़े हैं, पर जो प्यार और ख्याल हरीम को दुरेद से मिला है, उस हिसाब से उसकी ज़िंदगी के फैसले करने का हक सिर्फ दुरेद को है, जिस पे ना शाह साहब को इतराज़ होगा और ना खुद हरीम को। कुलसुम बेगम का लहजा दो टोक था। ठीक है, जैसा आप कहें, तापिश को तो सब जानते हैं, मुझे यकीन है दुरेद को कोई एतराज़ नहीं होगा। सद्दा बेगम पुरसुकून सी बोली, इश्क भी तू है, प्यार भी तू है, तू ही मेरी मोहब्बत है, सांसों में तेरी सांसों में ले लूँ तेरी अगर इजाज़त हो। आरविश अपने कमरे में मौजूद टीवी पे चैनल सर्च कर रही थी, जब एक चैनल पे चलते हुए सॉन्ग पे इसका रिमोट पे काम करता हाथ थम गया। टीवी पे कोई लाइव शो चल रहा था, जिसमें यमान मुस्तकीम फुल ब्लैक सूट में खड़ा माइक हाथ में लिए गाना गा रहा था, जिसको सुनकर वो चाह कर भी चैनल तब्दील ना कर पाए। इससे ज़्यादा घटिया कोई सिंगर गा भी नहीं सकता। यमान मुस्तकीम को एक मिसरा दोबारा गाते सुनकर आरविश जल कर बड़बड़ाई, तेरे बिन इस दुनिया का यार करूँगा क्या, मुझको तो बस शाम सवेरे एक तेरी चाहत है, सांसों में तेरी सांसों में ले लूँ तेरी अगर इजाज़त हो। मैं अंदर आ सकती हूँ, आरविश जो सर्द नज़रों से टीवी स्क्रीन पर जमाए बैठी थी, अचानक माही की आवाज़ पे चौंक कर टीवी बंद करना चाहा। जब माही बोल पाई, चलने दो प्लीज़, माही के अल्फाज पे आरविश ने रिमोट इसकी जाने बढ़ाया, जिसको माही ने कुछ देरी से अपने हाथ में ले लिया। हैं जितने भी मौसम तेरे संग गुजारेंगे, दिल पे चढ़े हैं जो तेरे अब ना उतरेंगे, सांसों में तेरी सांसों में ले लूँ तेरी अगर इजाज़त हो। इश्क भी तू है, प्यार भी तू है, तू ही मेरी मोहब्बत है, सांसों में तेरी सांसों में ले लूँ तेरी अगर इजाज़त हो। इसके गाने कमाल के होते हैं और ये खुद भी बहुत हैंडसम है। इन सेलिब्रिटी का भी क्या ठाठ है। गाना ख़त्म होने के बाद माही ने किसी ट्रांस की कैफियत में कहा, तो आरविश इसको घूरने लगी, ये बात लाला शाह को भी बताना। आरविश हाथ की मुठियाँ बेचकर बोली, तो माही सब टाइप इनको क्यों, माई ने हड़बड़ा कर कहा, ऐसी जनरल नॉलेज मिल जाएगी इनको। आरविश ने कंधे उचका कर कहा, अच्छा एक बात पूछूं, माई ने कहा, पूछो। आरविश ने इजाज़त दी, अब कोई मुझे काम करने का क्यों नहीं कहता, एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो गया, मेरी हालत भी कतरे बेहतर है और किसी ने इस बीच मुझ पर गुस्सा भी नहीं किया। माई के लहजे में हैरत आया थी, काम करने का शौक चढ़ा है या भाभी शबाना की मार याद आ रही है। उसकी बात पर आरविश ने तंजिया के तो माही बोलकर पछताए, दोनों का नहीं दिल कर रहा, वो तो मैं बस जनरल नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ। माही ने जल्दी से कहा, लाला ने सबको वार्निंग दी है, तुम परेशान नहीं हो, जब तक लाला यहाँ है कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, आरविश ने कहा। और जब वो ना हो तो, माही ने डर का पूछा, तो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, तुम बच्चे से सब जानती हो, हवेली में सब तुम्हें पिन्नी की नज़र से देखते हैं, जबकि लाला तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आरविश ने बताया, पर उसकी आखिरी बात सुनकर माही को जाने क्यों दुख हुआ। तुम क्या समझती हो मुझे और किस नज़र से देखती हो। माही ने उसका नज़रिया जानना चाहा। मैं तुम्हें अपने लाला की बीवी की हैसियत से देखती हूँ, आरविश ने कहा, पर उनके लिए तो मैं एक ज़िम्मेदारी हूँ। माही अफ़सोस से कहा, मैं क्या कह सकती हूँ। आविश ने कंधे उचकाए, एक और बात पूछूं, माही ने सर झटकते कहा, पूछो। आविश ने इजाज़त दी, मैं जब से यहाँ आई हूँ तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने कमरे में देखा है, जबकि तुम्हारे अलावा जो तीनों लड़कियाँ होती हैं वो तो पूरी हवेली में नज़र आती हैं, फिर तुम क्यों नहीं। माही तब मुतज्जिस लहजे में बोली, तुम्हें मेरे कमरे में रहने से मसला है या इन तीनों के हवेली में हर जगह नज़र आने से मसला है। आरविश बेतासुर लहजे में उससे बोली, मुझे दोनों से कोई मसला नहीं, वो तो बस ऐसे ही सवाल किया। माही ने फ़ौरन से कहा, मुझे नहीं पसंद कोई मुझसे ऐसे सवाल करे। आरविश ने साफ लहजे में कहा, तुम बहुत रूठ हो। माही ने बताना ज़रूरी समझा, पर उसकी बात पे आरविश के दिमाग में कुछ और गूंजने लगा। आप बहुत रूठ हैं, मुझे पता है, आरविश अपना सर झटक कर बोली।
मैं चलती हूँ। फिर माही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखती ही उठ खड़ी हुई हुई। लाला कहीं गए हैं क्या? अब की बार आरविश ने पूछा। हाँ, हर शाम के वक्त चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह को आते हैं, माही ने बताया। ठीक, आरविश ने सर हिलाया। वैसे तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है? माही को जाने क्या सूझे से सवाल कर बैठी। कोई भी नहीं, आरविश ने गहरी सांस लेकर कहा। आज यमान को शो में इनवाइट किया गया था। शो ख़त्म होने के बाद यमान बाहर निकला तो लोगों को एक कतार उसके मुंतज़िर थी। यमान के बाहर आते ही सब ज़ोर शोर से उसका नाम लेने लगे। मैंने कहा भी था मुझे दूसरे एग्ज़िट दरवाजे से जाना है। यहाँ के आने का नतीजा ये है। हुजूम के दरमियान अपना रास्ता निकालता यमान तीखे लहजे में साथ चलते अरमान से बोला। सर, वहाँ इससे ज़्यादा लोग मौजूद हैं। अरमान ने सफाई पेश की। और जो अब मेरा सर दर्द से फट रहा है उसका क्या तुम्हें इतना सेंस नहीं? अरमान की गाड़ी को पास में ही खड़ा कर देते। तुम्हें पता है मैं आज ना किसी के सवाल के जवाब दे सकता हूँ और ना कुछ और काम कर सकता हूँ। यमान सख्त लहजे में बोला। सर, ऑटोग्राफ प्लीज़। सर, वन सेल्फी प्लीज़। अरमान के कुछ कहने से पहले सब लोगों ने यमान को घेर लिया, जिससे सिक्योरिटी गार्ड ने उनको हटाना चाहा, पर यमान ने हाथ की मदद से रोक लिया। उसके चेहरे पे तकलीफ़ के आसार देखकर अरमान ने अपने होठों को पीस लिया। वो जानता था यमान की तबीयत अब अक्सर ख़राब रहने लगी थी। ये बात वो दिलावर ख़ान को भी बता चुका था। उन्होंने यमान को सिंगिंग करने अब कुछ गैप लेने का भी कहा था, पर यमान उनकी बात टाल गया था। यमान से बात करवाओ मेरी। अरमान और यमान अभी गाड़ी में बैठे थे जब अरमान के सेल फ़ोन पर मिसेस दिलावर की कॉल आई। उनकी बात पर अरमान ने यमान को देखा, जो सीट पर टेक लगाकर आंखें मूंद कर बैठा था। मिसेस दिलावर आपसे बात करना चाहती हैं। अरमान ने यमान से कहा तो यमान ने अपनी सुर्ख होती आंखों को खोला। अस्सलाम वालेकुम। यमान अरमान से फ़ोन लेता बोला। वालेकुम सलाम। यमान, कैसे हो? मिसेस दिलावर फ़िक्रमंदी से हाल हवाल दरियाफ़्त करने लगी। मैं ठीक हूँ, आप बताइए? यमान ने बताने के बाद पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम आज रात घर आना, बात करनी है तुमसे, मिसेस दिलावर ने कहा। आज? यमान ने कंफर्म करना चाहा। हाँ, क्यों, क्या मसरूफ़ हो? मिसेस दिलावर ने पूछा। ऐसी बात नहीं, मैं आ जाऊँगा। यमान गहरी सांस भरकर बोला। उसका इरादा नींद की गोलियां लेकर लंबी तान सोने का था, पर मिसेस दिलावर को इनकार भी नहीं कर सकता था। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। मिसेस दिलावर खुश होती बोली तो यमान कॉल बंद होने के बाद सेल फ़ोन अरमान की तरफ बढ़ाया। आप यहाँ? माई ने रात के वक्त शादिल को कमरे में देखा तो हैरान हुई, क्यों शादिल अक्सर रात के वक्त बाहर होता था। हाँ, मैं यहाँ क्यों? मुझे कहीं और होना चाहिए था क्या? शादिल को उसका हैरान होना समझ नहीं आया। हाँ, माही के मुँह से बेसाख्ता फिसला तो शादिल ने उम्र उचकाया। मेरा मतलब था आप तो बाहर होते ना इस वक्त? माही संभल कर बोली। होता था, क्योंकि काम होते थे, आज नहीं है तो अपने कमरे में हूँ। शादिल ये कह बेड पर लेट गया। उसको बेड पे सोता देखकर माही कश्मकश में मुब्तला हुई। मैं कहाँ सोऊंगी? माही ने बिलाखिर पूछ लिया। क्या मतलब कहाँ सोगी? यही बेड पे, और कहाँ? शाजिल ने ताज्जुब से कहा। बेड पे तो आप है ना? माही ने बताया। तो क्या हुआ, परेशान मत हो, मेरा किरदार मजबूत है, इसलिए तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, शाजिल पुरसुकून लहजे में बोला। जिनके किरदार मजबूत होते हैं उनके सेल फोन पर हर रोज़ नई लड़की की कॉल नहीं आती। माही ये बात करना तो दिल में चाहती थी, पर बेअख्तियार उसके मुंह से निकला, जिसको सुनकर शाजिल झटके से उठ बैठा। क्या मतलब तुम्हारा इस बात से? क्या कहना चाहती हो तुम? शाजिल घूर कर पूछने लगा। मैं तो कुछ नहीं, वो तो बस मुंह से फिसल गया। माही हड़बड़ा कर बोली। ये आजकल तुम्हारी जबान ज़्यादा फिसलने नहीं लगी है? शाजिल ने दांत पे दांत जमाए। पता नहीं, आप सो जाए, मैं भी सो जाऊंगी। माही ने जान छुड़ाने के लिए कहा। मैं तो सो ही जाऊंगा। शाजिल इतना कहकर दोबारा लेट गया। उसको सोता देखकर माही भी बेड की दूसरी तरफ आकर कमरे की लाइट बंद करके लेट गई। सुने, थोड़ी देर बाद माही ने शाजिल की तरफ करवट लेकर उसको पुकारा। सुनाइए, शाजिल ने फर्माबरदार से कहा। आपकी टोटल गर्लफ्रेंड्स कितनी हैं? माही के सवाल पे शाजिल ने पट से आंखें खोली। ये रात के वक्त तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड्स कहाँ से याद आई? शाजिल हैरान हुआ। भूली कब थी? माही ने जल कर और बोली। क्या मतलब? शाजिल को समझ नहीं आया। मेरा मतलब है कि बस यूं ही ख्याल आया तो सोचा आपसे पूछ लूं, माई ने जल्दी से कहा। अच्छा, निमरा, फ़ायज़ा और राबिया ये तीनों स्कूल लाइफ से फ्रेंड्स हैं, और सानिया, तानिया, सितारा, तारा, यास्मीन, अंबर, फरा, सारा, रबाब, दिलनशी ये कॉलेज लाइफ से है। कॉलेज के बाद में हाई स्टडी के लिए लंदन गया था, वहाँ भी 6 से 7 बन गई थी। शाजिल ठठर करके बताने लगा। उसकी बातों से माई को झटके पे झटके लग रहे थे। मतलब बचपन से ही दिल फेंक है। माही की ज़बान एक बार फिसली तो शाजिल लाइट ऑन करता बैठ गया। इसको बैठता देखकर माही भी मुंह बनाकर बैठ गई।
फ्रेंड्स बनाने वाले क्या दिल फेंक होते हैं? शातिल ने उसकी तरफ देखकर कहा, गर्लफ्रेंड्स बनाने वाले दिल फेंक होते हैं। माही ने बिना बना बनाते खैर किए जवाब दिया। और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? शातिल इतना कहता चुप हो गया। उसका दिमाग अचानक कुछ किलक हुआ। फिर उसके बेयकीन नज़रों से माही को देखा, जिसका मुंह गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। अस्तगफिरुल्लाह, तुम मुझे ऐसा समझती हो? सारी बात समझ आने के बाद शातिल चिरचिरी लेकर बोला, मैं ऐसा वैसा क्यों समझूंगी? आपने खुद बताया आपकी 10 में से 20 से ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स है। अल्लाह जाने शादी कितनी करने का इरादा है आपका। माही हाथ खड़े किए बोली, कल कल गर्लफ्रेंड का मतलब ये नहीं कि मेरा उनके साथ टाँका फिट है। ये तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो लड़कियां हैं तो गर्लफ्रेंड्स हुई, अब बॉयफ्रेंड कहने से तो मैं रहा। शाज़िल इसकी बात पे माही के चौंक कर इसकी तरफ देखा। अगर ऐसी बात है तो आप भी फ्रेंड भी बोल सकते थे, गर्ल लगाना ज़रूरी था क्या? माही अपनी अखजलत मिटाने की गर्ज से बोली, मुझे क्या पता था तुम इतनी अक्लमंद हो, और पता होता तो बिल्कुल ना कहता। खामखा मेरा किरदार मशबूह कर दिया। शाज़िल कानों को हाथ लगाकर बोला तो माही की हंसी छूट गई। शाज़िल ने इतने दिनों के बाद पहली बार इसको हंसते देखा था। असहाकल्लाहु इस्नाक, शाज़िल के मुंह से ये अल्फाज सुनकर नासमझी से उसको देखा। क्या पढ़ा आपने? माही मुतजस्सिस हुई। अज़हाकल्लाहु इस्नाक, ये एक दुआ है जो किसी को हंसता देखो तो पढ़ा करो। शाज़िल ने मुस्कुरा कर बताया। अच्छा, मुझे आज से पहले मालूम नहीं था। माही को अफसोस हुआ। मुझे ये दुआ याद नहीं रहती थी, पर आविश को हमेशा याद होती थी। मुझे भी वो बार बार याद करवाती थी, तभी मुझे अब याद होती है। शाज़िल ने मोहब्बत से आविश का नाम लिया तो माही को आविश पे रक्श आया। एक बात पूछूं? माही ने कुछ सोच कर पूछा। हाँ पूछ लो, क्योंकि तुम्हें देखकर लग रहा है तुम्हारा सोने का कोई मूड नहीं। शाज़िल की बात पे वो किसियानी हुई। क्या आरविश आपकी अपनी बहन है? माही ने कुछ झिझक कर पूछा तो उसको डर था कहीं शाज़िल बुरा ना मान जाए। ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स वो मेरी बहन है। शाज़िल संजीदा हुआ। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा अरसे से मैं यहाँ हूँ। हवेली के हर फर्द से मैं वाकिफ़ हूँ, सबकी शक्लें भी मुझे याद हैं, पर उनसे चेहरों से आरविश का चेहरा सबसे अलग होता है। माही ने थोड़ा डर कर कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? शाज़िल की बात समझ नहीं पा रहा था। मैं बस ये कह रही हूँ कि आपका चेहरा आपके बाबा से मिलता-जुलता है, और आपके बड़े भाई दुरेशा का अपनी माँ से। वो जो हरीम होती है, उनकी शक्ल भी आप लोगों से कुछ मिली-जुली होती है। नूर, नाज़नीन और दिदाशा, भाभी शबाना, पर इन सब के बरअक्स आरविश की नैन नकुश आँखों को रंग सब मुख्तलिफ होता है। उसका रंग गोरा चिट्टा है, पर वो जैसे पठान ख़ानदान की लगती है। आपने कभी इसके गाल देखे? कैसे सुर्ख और सफ़ेद? स्टॉप माही, सुर्ख और सफ़ेद। स्टॉप माही, शाज़िल गुस्से से उसकी जानिब देखकर झड़का उठा। सॉरी, माही उसकी चीख पर काँप उठी। आबिश बहन है मेरी, शाह ख़ानदान की है। आज तो तुमने इसका शुमार किसी और ज़ात से कर दिया है। दोबारा गलती मत करना, क्योंकि मैं तो ये बात बर्दाश्त कर गया। हवेली में अगर ये बात बाबा साईं तक पहुँची तो तुम्हें अंदाज़ा नहीं वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे। जान बसी है उनकी आविश में। बेटियों से ज़्यादा बेटी अजीज़ है, बेटों से ज़्यादा बेटी अजीज़ है इन्हें। शाज़िल एक एक लफ्ज़ पे ज़ोर देकर बोला तो माही खामोश हो गई। शाज़िल एक नज़र उस पर डालकर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद माही ने सारी रात रोकर गुजारी। यामिन नहीं आया अभी स्कूल से? इशा फजर के घर में दाखिल होती पूछने लगी। कहाँ, अभी 1 घंटा रहता है। फजर ने बताया। बात हुई तुम्हारी उससे? ईशा ने सोफे पे बैठकर पूछने लगी। वो जो लड़का आता है अरमान, उसको मैं साफ साफ इनकार कर दिया कि दोबारा महीने की पहली तारीख को राशन देने ना आए। हमें चीज़ों की नहीं, चीज़ें भेजने वाले की ज़रूरत है। फजर उसकी बात का मतलब समझकर बताने लगी। फिर क्या कहा उससे? ईशा ने जानना चाहा। वो क्या कहता है? वो तो यमान के इशारे पे चलता और बोलता है। इस बात को 3 माह हो गए हैं, फिर इसके आदमी पलट कर नहीं आए। फजर तंजिया लहजे में बोली, 3 माह यमन? ऐसा तो नहीं था, वो तो हमसे इतना वक्त गाफिल कैसे हो सकता है? ईशा को दुख हुआ। वो गाफिल नहीं है ईशा, बस वो यहाँ आना नहीं चाहता। पता नहीं क्यों हमें किस बात की सज़ा दे रहा है, हमारा क्या कसूर? फजर की आंखें नम हुई। छोड़ो ये बातें, मैं इस बार 3 दिनों के लिए आई हूँ। सोचा तुम अकेली होगी, तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार लिया जाए। ईशा बात बदलकर मुस्कुराहट से बोली, मैं सालों से अकेली रह रही हूँ, अब तो आदत है। वो तो अल्लाह का शुक्र है जो यामीन मेरी ज़िंदगी में आया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। फजर सर झटक कर बोली, शादी कर लो। ईशा ने अचानक से उसके हाथ पर अपना हाथ रख कर कहा।
पागल हो गई हो? फजर अपना हाथ उससे हाथ से अलग करती बोली। इसमें पागल होने वाली क्या बात है? यामिन का सोचो, अपना सोचो। तुम कब तक अकेली तन्हा ज़िंदगी गुजारोगी? आगे चलकर तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत पड़नी है तो बेहतर यही है कि जल्दी से तुम अपने लिए कोई फ़ैसला कर लो। ईशा समझाने वाले अंदाज में बोली। तुम्हारा लगता है दिमाग ख़राब हो गया है। मैं पहले से शादीशुदा हूँ, 5 साल का बेटा है मेरा, और तुम मुझे दूसरी शादी का मशवरा दे रही हो। फजर ने गुस्से से कहा, शादीशुदा हो नहीं, शादीशुदा थी, और तुम्हें नहीं लगता यामिन को बाप के प्यार की ज़रूरत है? ईशा ने संजीदगी से कहा, इसको नहीं ज़रूरत अपने बेटे के लिए, मैं काफ़ी हूँ। फजर का अंदाज अटल था। तुम खुद गर्ज बनकर सोच रही हो फजर। ईशा को अफसोस हुआ। तुम्हें अचानक से मेरी शादी का ख्याल क्यों आया? इतने वक्त बाद आई हो और ये बातें लेकर बैठ गई हो। खैर तो है? फजर मशकूक नज़रों से उसको देख कर बोली तो ईशा अपना सर झुका गई। सर मत झुकाओ ईशा, सारी बात बताओ। फजर का लहजा हर एहसास से आ रही था। माहिन जो मेरी नंद है उसकी सास अपने बेटे फराज के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगना चाहती हैं। तभी आंटी ने मुझे कहा कि मैं तुमसे इस सिलसिले में बात करूं। ईशा ने किसी मुजरिम की तरह बताया तो फजर झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। ओह, तो ये बात है, तुम्हारी सास ने ये भी कहा होगा 3 दिन उसके पास रहना और राजी कर लेना। फजर को हकीकतन दुख हुआ। हाँ, ऐसी बात है, पर इसमें कुछ गलत बात भी तो नहीं है। तुम्हें जीवन साथी मिलेगा और यामिन को बाप का प्यार। ईशा ने एक और कोशिश की। वो फराज एक नंबर का मवाली जो हर आती जाती लड़की को हवस भरी नज़रों से देखता है, वो मेरे बेटे को बाप का प्यार देगा? वो कमीना मेरा जीवन साथी बनेगा? क्या हो गया तुम्हें ईशा? फजर को इसकी बातों से हैरानगी हुई। प्लीज़ अजय, मेरी बहन हो, मान जाओ। अगर तुम ना माने तो माहिन को घर आने नहीं देंगे। अगर उसका घर ख़राब हुआ तो मेरा घर बचेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी। ईशा आहिस्ता आवाज़ में बोली, तुम्हारे नन के ससुराल वालों से मेरा कोई कंसर्न नहीं। ईशा, इसलिए खुदा के वास्ते दोबारा ये बात मत करना, वरना मैं ये सोच लूँगी कि भाई से के साथ एक जो बहन थी अब वो भी नहीं। फजर सपाट लहजे में बोली, तुमने यमान के लिए भी तो कुर्बानियाँ दी थी ना। आज जब मैं पहली बार तुमसे कुछ मांग रही तो यूँ खाली हाथ लौटा रही हो। ईशा को रोना आया। तुमने मुझे क्या समझा ईशा? सिर्फ कुर्बानी देने वाला बकरे बकरे को भी एक दफ़ा कुर्बान किया जाता है, तो मैं क्यों बार बार कुर्बानी देती फिरूं? बहन की मोहब्बत में आकर अपने बेटे का मुस्तकबिल ख़राब कर दूं? मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं ईशा। मेरे लिए मेरा बेटा काफ़ी है। बड़ा होकर वो मेरा सहारा बनेगा। और रही बात अब की, तो यमान है ना, चाहिए मिलने नहीं आता, पर वो दूर रहकर भी हमारा सोचता है। तो फिक्र नहीं करो, असफन कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसके 2 बच्चों की माँ हो तुम। 4 साल का ताल्लुक बिना किसी वजह के वो ख़त्म नहीं करेगा तुमसे, क्योंकि वो ये बात अच्छी से जानता है उसका घर किसके पैसों पे चलता है। फजर बेलहजक लहजे में बोली, ताना दे रही हो? ईशा को फजर की आखिरी बात पसंद नहीं आई। नहीं मेरी बहन, ताना नहीं दे रही, बस ये बोल रही तुम्हें उनसे दबने की ज़रूरत नहीं। तुम यमान मुस्तकीम की बहन हो, जो कोई आम शख्सियत का मालिक नहीं, मशहूर सिंगर है। आखिरी बात पे ना चाहते हुए फजर की आंखों में आंसू आए तो ईशा बिना कुछ कहे उसको अपने गले से लगा लिया। पीछे हटो, यामिन को पिक करने जाना है। फजर इसको पीछे धकेल कर बोली, तुम ना भी जाओ यामिन, उसने भाई हिफाजत घर पहुंच ही जाना है, बड़ा जिम्मेदार है उसका मामा। ईशा चले कुटे अंदाज में बोली तो फजर एक एक उसके बाजू पे थप्पड़ रसीद किया। चाची जान कुछ खा लेती। आमना ने कमरे में खामोश बैठी बख्तावर बेगम से कहा, जो मायके जाने के बाद ज़्यादातर अपने कमरे में रहना पसंद करती थी। जाने मेरी मासूम बच्ची ने खाना खाया भी होगा या नहीं, पता नहीं कैसा कैसा जुल्म करते होंगे उस पे। बख्तावर बेगम अपनी आंखों से आंसू पोंछ कर बोली, अल्लाह है ना, वो उसकी हिफाजत करेगा। आप परेशान मत हो, खाना खा लें वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। आमना ने उनको तसल्ली करवाने के लिए साथ साथ उनको समझाना चाहा। कैसे परेशान ना हूँ, वह मेरी बच्ची ज़ालिमों के दरमियान है तो कैसे मेरे हलक से निवाला उतरेगा। बख्तावर बेगम ने कहा, आप दुआ करें वो ठीक हो, इंशाअल्लाह माई जल्द हमारे पास होगी। जैन साली की आवाज़ पे दोनों ने चौंक कर इसकी तरफ देखा जो बगैर किसी तासुर के खड़ा था। तो इसने इसके यहाँ आने के सारे रास्ते ख़त्म कर दिए, यहाँ तो उसकी लाश भी नहीं भेजेंगे। बेगम के लहजे में बेबसी थी। उस दिन जो हुआ वो एक हादसा था। मैंने दिलदार शाह का कत्ल नहीं किया, बल्कि वो तो मेरा करने वाला था। बस अपने बचाव करने पे कैसे गोली चल गई पता ही नहीं चला। सैन ने वजाहत देते कहा, तो तू कत्ल किया है या वो एक हादसा था? जो भी था, बेरहमा रहमाना कत्ल की सज़ा हमारी बच्ची को मिल रही है। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कत्ल क्यों और कैसे हुआ। बख्तावर बेगम चीख पड़ी।
अम्मी जान फ़र्क पड़ता है, मुझे फँसाया जा रहा है, जुर्म मैंने किया ही नहीं, उसकी सज़ा मुझे या मेरी बहन को क्यों मिली? अगर गोली एक चली थी तो गोलियों से छीलनी उसका सीना किसने किया? मैंने तो नहीं किया, मैं तो वहाँ से भाग गया था। फिर खबर मिली, अल्लाह की कसम मैं खुद नहीं जानता ये सब कैसे हुआ। ज़हन उनके कदमों के पास बैठकर बोला, जब तुझसे कहा गया था दिलदार शाह से दूर रह तो तू क्यों नहीं माना? बख्तावर बेगम ने पूछा, जबकि आमना खामोशी से ज़ैन की तरफ देख रही थी। मैं उससे बात नहीं करना चाहता था, वो ज़बरदस्ती मुझसे कुछ पेपर्स के साइन लेना चाहता था। आप बताएँ फिर मैं क्या करता? ज़ैन ने अपना दिफ़ा किया। ज़ैन तू बस उन कातलों को ज़ैन तू बस उन कातलों को हवेली वालों के सामने कर, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। हमारी माही यहाँ वापस चली आएगी। बख्तावर बेगम उम्मीद भरे लहजे में खोया हुई। आप परेशान मत हो, मैं उसी काम में हूँ, जल्द कुछ ना कुछ मालूम हो जाएगा। ज़ैन हकीकत से उनका हाथ चूमकर बोला तो बख्तावर बेगम के चेहरे पे इत्मीनान उभरा। शबाना की इद्दत पूरी होने के 2 दिन बाद उसका निकाह है। रात के वक्त कुलसुम बेगम अपने कमरे में आई तो शहबाज शाह ने उनसे कहा, जिसको सुनकर वो हैरान हुई। ये कैसी बातें कर रहे आप निकाह, वो भी शबाना का? उसका दुख इतना छोटा नहीं जो दूसरा निकाह करेगी। दिलदार शाह उसको मोहब्बत थी, वो कभी नहीं मानेगी। कुलसुम बेगम फिक्रमंदी से बोली, तुमसे या उससे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ सब तय हो चुका है। शहबाज शाह का अंदाज दो टोक था। भाई साहब मान गए हैं? कुलसुम बेगम अफसरदा सांस लेकर पूछने लगी। हाँ दोनों मान गए हैं, शबाना का निकाह दिलदार शाह से होगा। शहबाज शाह ये बोलकर बेड पर लेटने लगे। दिलदार शाह पर शबाना तो उसको अपना भाई समझती है, कुलसुम बेगम को दूसरी फिक्र लाहक हुई, शादी के बाद शौहर समझ लेगी। शहबाज शाह आराम से बोले, आपको नहीं लगता आपको शबाना की बजाय आरविश का सोचना चाहिए? कुलसुम बेगम की बात पे वो एकदम उठे। क्या मतलब? आरविश के बारे में क्या सोचना चाहिए मुझे? शहबाज शाह ने तीखी नज़रों से उनको देखा। सदफ आई थी कल, कुलसुम बेगम ने बताया। तो शहबाज शाह ने ख़ास नोटिस नहीं लिया। हरीम का रिश्ता मांगने आई थी, शबाना की इद्दत के बाद रस्म करना चाहती है, कुलसुम बेगम ने तफसील से बताया। आरविश के ज़िक्र में हरीम कहाँ से आ गए? शहबाज शाह कुछ भरम हुए। हरीम का रिश्ता भी हो जाएगा, नूर नाज़रीन का भी हो चुका है, आरविश का भी सोचे कुछ। वो कब तक यूँ खुद से लड़ती रहेगी? उसकी शादी नहीं करवानी आपने? कुलसुम बेगम ने सवाल किया। मुनासिब रिश्ता है तुम्हारी नज़र में? अगर है तो बता दो, वरना मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं। शहबाज शाह संजीदगी से बोले, वहीदा से बात करो साजिद के लिए। कुलसुम बेगम ने डर कर पूछा, साजिद से शादी करवाने से बेहतर है वो कुंवारी रहे। शहबाज शाह नागवारी से बोले तो कुलसुम बेगम उनका मुंह तकती रह गई।